This conference will now be recorded. चलो, I hope everybody has revised. Hello, गायकी कैसा है बेटा? Yes. Good. तो मूविंग अहेड, आई थिंक परसों हम इसको खत्म कर देंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे. तो लास्ट सेशन we discussed about buffer solutions. These are the solutions which can resist pH change in pH to an appreciable extent. That has to be taken care, right? For example, blood, gastric juice, etc. Broadly, these are of two type, acidic and basic buffer solution. Rather, अगर आपको स्कूल में क्वेश्चन आया, आप कोट ही यही वाला करने वाले हो. Equimolar mixture of weak acid and its salt with strong base, or either weak base and its salt with strong acid. We discussed buffer action, that how it is going to resist added H plus or added H plus from outside. उसको reserve basicity, BS का मतलब buffer solution destroy करेगा. You also discussed reserve acidity will be of the positive ion. Like याद आ गया? Some equation was introduced, Henderson-Hasselbalch equation. Although derivation is not in your syllabus, but you used it also. Buffer capacity, Hanji. So just the previous slides you were explaining out. So इसके next to. So 8. Yes, sir. So 8 slides. So इसमें सर ने जो buffer solution behaves best at pH is equal to pK plus minus 1. सर ये इसीलिए क्योंकि अगर salt और acid अगर equimolar होंगे तो वो equally neutralize. वैसे तो बेस्ट कब होगा जब pH is equal to pK. It is something like this, अनुज, कि तुमने कोई बफर सॉल्यूशन बनाना बेटे. फॉर एग्जांपल तुम्हें बफर सॉल्यूशन बनाना है, उसका pH जो तुम्हें चाहिए है 7.05 है. तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो लिस्ट होगी, आप वो वाला एसिड उठाओगे जिसका pH is closest to the pKa आपने जो चुना है. ओ सॉरी, the pK is closest to the pH आपने चुना है. ज्यादा से ज्यादा आप +-1 की वेरिएशन कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप. सो मैक्सिमम वी कैन टॉलरेट +-1. ठीक है दोस्त? Yes sir. ऑल्सो बेटे बफर सॉल्यूशंस कैन बी, इसको ध्यान रखना, ये आपके कॉम्पिटिशंस में काम आएगा, जबकि स्कूल्स के लिए तो सिर्फ इतना काफी होगा, एसिडिक बफर और बेसिक बफर. रेदर क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर ही बनने वाले हैं. अब आगे चलते हैं, आज के सेशन से शुरुआत करते हैं. ठीक, so we are introducing the types of salts. You understand salts are acid and base के neutralization product को हम salts बोलते हैं. Salts are going to be of 4 types. अभी अगले पेज पे कराता हूँ. And salt hydrolysis का मतलब, मान लीजिए हमारे पास कोई भी salt है, अगर हम उसमें water डालेंगे, so its natural tendency will be to produce acid or base. So इसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, हम यहाँ पे H लगाएंगे, where H सिद्धार्थ is going to represent the hydrolysis. जैसे A for acid, B for base आता था ना, ऐसे H for salt के लिए hydrolysis. hydrolysis salt के लिए बेटा यूज होने वाला है. As I just said, salts are going to be product of neutralization of acid and bases. So Agrim Singh, salts are broadly of 4 types with it. Everybody understand? Strong acid, strong base, weak acid and weak base. ये मैं abbreviation खुल के use करने वाला. पहला Agrim, salt of strong acid and strong base. Strong acid, strong base, क्या एग्जांपल होगा? NaCl. अनुवंश, you can create tens of more example. आप यहाँ पे QH लेके यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ले सकते थे. Salt of strong acid, HCl. Weak base, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एग्जांपल आ जाएगा. Salt of weak acid, हाइड्रोजन साइनाइड. And strong base, NaOH. आप चाहते बेटे यहाँ पे आप ले सकते थे कार्बोनिक एसिड, और NaOH क्या ले सकता था अनुवंश? सोडियम कार्बोनेट. Sodium carbonate.
वीक एसिड एंड वीक बेस, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अनुवंश का नाम बताओ अग्रिम। अमोनियम एसिडेट। एसिडेट, अमोनियम एसिडेट। जो पॉजिटिव होता है नॉर्मली आप उसको पहले बोलते हो गायकी और दूसरे वाले को बाद में बोलते हो। Yes, sir. गायकी एक चीज सीख, अगले पेज पर ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटिया। आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, जब इसके Yes, ऊपर sir. पानी डालेगा तो पानी के अंदर विजुअलाइज कर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव Yes, sir. नेगेटिव को किसको दे दे, पॉजिटिव दे दे, तो गुड़िया क्या मिलेगा तेरे पास? NaOH, NaOH, sodium HCl। HCl. वेरी गुड। अब मैं बोर्ड पे कुछ लिखने वाला हूं दोस्तों। अगर मैं आपसे इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो क्या आप समझते हैं बच्चे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही बोल रहा, गुड। अनुवंश एक और चीज डालता हूं बेटा, जरा ध्यान करना। पोटेशियम फ्लोराइड, बोलो। HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। राइट, याद रखना HF इज अ वीक एसिड। तो अगर मैं आपसे NaCl का पानी के अंदर pH पूछूं तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बोलने वाले हैं? 7। एवरीबॉडी शुड स्पीक आउट। अगर मैं आपसे अमोनियम नाइट्रेट का pH पूछूं तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड इट विल बी लेस देन 7। अन्य बोलने का है, ठीक प्रभाकर? बोलने का है बेटे, सो उससे समझ आता है। So that is going to be, हाँ जी बेटिया, strong base and more than 7। हाँ प्रभाकर क्या पूछा था? सर मेरी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, आपने क्या लिखा? नेट वीक है बेटिया, रिफ्रेश कर। ठीक है, बाकी सबको आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो कोई बात नहीं प्रभाकर, वो थोड़ी सी स्पाइक है तो उसको ठीक कर। अब गायकी जी आगे आ रही है, जसलीन Yes, को और sir. कोशिश कर बात करने की। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में से उठा है। प्रेडिक्ट, न्यूट्रल है, एसिडिक है और बेसिक है। तो बच्चों NaCl न्यूट्रल। अभी गायकी न्यूट्रल। Neutral. KBr KOH plus HBr। और मेरे से पूछ सकता अगर कोई चीज समझ नहीं आती। न्यूट्रल। 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 NaOH and HCl। प्रोडक्ट बताओ। सर बेसिक। वेरी गुड। बेसिक। विपिन ऐसे बोला करीना है। एसिडिक। यस विपिन। एसिडिक। 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 बेसिक। किसी को नहीं आता मेरे से पूछ सकता है। KF बेसिक। बेसिक। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, बेसिक। बेसिक। अनुमान समझ आया? सर एक चीज देखो बेटे, ये तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सारी आंखें बोर्ड के ऊपर समझने की बात कर रही है। तनवीर बात किया कर बेटिया। तो देख अमादनी, अब बेटे वीक एसिड एंड वीक बेस लेके आ रहा। सुनो, लेट इट बी एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बनाएगा? अमोनियम एसिड। अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लूं, आप नहीं बता सकते हैं एसिड होगा और बेस होगा। व्हाई? दोनों का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो इक्वल कैसे हो सकता है? समझ आया? यस। अगर एसिड का Ka ज्यादा हुआ तो अरोड़ा इसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे। अगर बेस का OH negative is more, then this will be having OH negative more. So it can be acidic or basic dependent upon
आपको अगर मैं पूरा H पॉजिटिव बताऊं कि AC से और OH नेगेटिव कहां से निकलेगा बेटिया, KBC से, then only you can predict. अनुवंश क्वेश्चन समझ आया? गायकी, प्रभाकर, अब ठीक है? Yes, sir. प्रभाकर, जहां पे we can predict these can be neutral, acidic or basic by watching the concentration of basic और acidic, strong acid और strong base में से कौन ज्यादा यहाँ बराबर होंगे. You cannot predict the salt of weak acid as weak base will be neutral. No. Did you understand? Because sir. that will be dissociating to a different extent. So अरोड़ा जो strong acid होते हैं, strong base होते हैं, by definition they are going to dissociate गुड़िया completely. So we are going to talk about that. You will be passing through extremely important phase. आपके school teacher leave aside competition will be asking lots of questions from there in your school test. Why? Because the topic they will assume कि आप लोगों ने नहीं किया है सिद्धार्थ, तो इसको अभी भी रिवाइज करना, इसको अगले साल अक्टूबर में भी रिवाइज करना, दिसंबर में भी रिवाइज करना. Yes, sir. ऑफ कोर्स आपने अपने जेई से पहले, नीट से पहले तो करना ही होगा. We are going to discuss hydrolysis of salt. एक एक बंदा इस वक्त मेरे से बात करेगा. इस वक्त मैं अनन्या अरोड़ा को बात करने के लिए कह रहा हूँ. ठीक, और अनन्या यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इफ यू वांट. ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान से, जल्दी नहीं करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. वी विल टेक अवर ऑन टाइम. हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अरोड़ा, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. जस्ट वेट, समझाता हूं क्यों. इसको एसिटेट, सोडियम एसिटेट बोल सकते हैं बेटा. यस. By default, जब तक मैं ना भी आने वाले टॉपिक में सिखाऊं, salt are going to be taken as strong electrolyte. So Dolly, you will write it dissociated form, negative and positive. Water is a weak electrolyte, beta. So water is written like this. Got it? Yes. Now, equilibria, you're going to get weak acid. You see, I'm writing it as without positive or negative charges. NaOH, I'm writing it as Na and OH negative respectively. तो अनया जरा सिर्फ आपको समझाने के लिए इसके आगे मैंने A लिखा. ये समझ आया मैंने ऐसे क्यों लिखा? नाउ बेटे, जो कॉमन आयन है, जो लेफ्ट और राइट दोनों पे हैं, उनको उड़ा दीजिए. राइट? What you are left with acetate ion, water, acetic acid and OH negative. दोनों साइड पे आपको नेगेटिव नेगेटिव नजर आ रहा. That is why this is known as कौन सी हाइड्रोलाइसिस? Anionic hydrolysis. Because the anion part is going to hydrolyze, बाकी तो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा. राइट सर. अब बी पार्ट पे चलते हैं. ये बी ए बी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. If we write its equilibrium constant, concentration of acetic acid into OH negative divided by concentration of acetate ion, चलेगा गुड़िया? Yes. Right. Now you see in this equilibria we have two weaker species. वो भी तो थोड़ा बहुत डिसोसिएट करेगा. आपको याद है हम वाटर की डिसोसिएशन कैसे लिखा करते थे बेटे? H plus OH negative. OH negative. The Kw was H plus into OH negative. Yes. And we have one more equilibria going in it, that is acetic acid. Acetic acid कैसे टूटता है? Acetate ion Acetate. and proton. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिख सकता था बच्चों? Yes, sir. You understand? I'm dividing Kw by Ka को मैं डिवाइड कर रहा हूं. Kw को न्यूमरेटर में रखा और उसको मैंने डिनोमिनेटर में रखा.
देखिए आपके सामने भी कर सकता हूं। क्या किया था गुड़िया? KW by KA। अनुवंश मैं याद करा दूंगा, बोझ नहीं डालना है, अभी सिर्फ प्रोसेस देखो, टेक्निक देखो। KW क्या था अन्या? H plus H plus OH negative. गुड बेटा। अब KA लिखते हैं, acetate एसिटेट ion, आयन Acetate. H plus proton, by एसिटिक एसिड। इसका Acetate. इक्विवेलेंट हो गया, व्हाट इज दिस? कंसंट्रेशन ऑफ, यस, acetic acid, एक मिनट मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, मैंने KH कैसे लिखा था? हाँ यू राइट, एसिटिक एसिड इनटू OH नेगेटिव hydroxyl, divided by, acetate. Acetate. isn't it equal to KH? Yes, sir. Yes. Right? मैं याद करा दूंगा बेटे, मेरे ऊपर छोड़ दो। That is KH. Hence we deduce that KH is equal to KW by, किसके बराबर आएगा? KA के। मैं याद करा दूंगा, मेरी जिम्मेवारी। आपने सिर्फ स्टेप्स देखे, हाँ ऐसा होता है, मेरे पास अपने रास्ते हैं याद कराने के। देख अन्या, इसमें Yes, कौन सा sir. वीक था बेटिया? वीक एसिड। Acetate. Acid. ऊपर देखना हमेशा KW आएगा, दोनों में से जो वीकर होगा ना वो नीचे आ जाएगा, KA आएगा। अभी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, नीचे KB आएगा। याद नहीं करने का बेटिया, सिर्फ कोरिलेट करने का। So, do you people understand first relation? Shall I move ahead? Yes. Right. अब उसी इक्विलिब्रियम को दोबारा देखो, वही जो पिछले पेज से लेके आए, ये वाला, ठीक? ये देखिए, एसिटेट आयन, वाटर, एसिटिक एसिड, OH नेगेटिव। एनी डाउट बच्चों? तो T is equal to 0 sir. पे दिस इज C, दिस इज 0, दिस इज 0। अब की बार अल्फा को, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को H बोल देते हैं। पीछे हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते थे, बिल्कुल वही चीज है। व्हाट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस? OH नेगेटिव बाय एसिड, जितना भी था हमारे पास ओरिजिनली, आई एम सॉरी सॉल्ट जितना था, ठीक? तो T is equal to इक्विलिब्रियम पे C minus CH, CH, CH। पिपेट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, हमने अल्फा की जगह पे क्या लिख दिया है? H लिख दिया है, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। तो क्या आप इसको ऐसे ही आपको समझाने के लिए A बोल देता हूं, समझ पा रहे हो? KH is equal to C square H square, C 1 minus H, Yes, sir. CH square 1 minus H। Ostwald law of dilution, nothing special। अगर H बहुत ज्यादा छोटा हुआ तो डिनोमिनेटर किसके बराबर होगा? 1 के। 1. तो बेटे वही वाला रिलेशन आ गया, वही वाला आ गया, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K बाय C। और अभी अभी तुमने पिछले पेज पे KH को क्या निकाला था? KW or C. KW by K. KA वैल्यू डाल देते हैं। इसको मैंने इसके लिए सेकंड बोला है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? आगे जा सकता हूं? पक्का? गुड। थर्ड थिंग, the first equation, second equation, third, it is derivable, but I do not want, कभी कभी पूछा नहीं गया, कभी को लेना देना नहीं है, it is very lengthy, so I'm not deriving it, right? If you want, I can send you the derivation, but you do not need it. The pH of salt of weak acid and strong base, जिसको क्या बोला जाता था? Anionic hydrolysis, anionic hydrolysis, क्योंकि अनुवंश बेसिकली एनायन इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड बेटे। तो pH इज हाफ आएगा ही आएगा, देखना सिर्फ ऑब्जर्वेशन मारो, pKw आएगा ही आएगा। इस वक्त pKa वीक एसिड के लिए pKa प्लस लॉग ऑफ C। व्हाट इज C? यू अंडरस्टैंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? सॉल्ट, Salt. राइट? मैं याद करा दूंगा, इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। एक हम पेज नंबर 22 पे वापस आता हूं। This is going to differentiate between an ordinary student and special student.
दैट इज हमने इस वक्त ये वाला किया है, kw by k hs kw by k into c, half of pkw half of pk plus half of log c। मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं याद करा दूंगा, मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इसके बारे में, so you can understand। Shall we move ahead? Right, हम आगे चल रहे हैं बेटे, और हम जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, hydrolysis of salt of the base and strong acid। ठीक, weak base and strong acid की हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, दिस इज गाय की बात कर, अमोनियम क्लोराइड। Yes, sir. अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, वाटर में डाला बहना, अमोनियम Yes, sir. हाइड्रोक्साइड एंड HCl। HCl. किसको काटेगा? HCl. Chlorine. क्लोराइड मता। Chloride. ठीक है गुड़िया। अब दोनों तरफ तेरे को क्या दिख रहा है बेटा? पॉजिटिव। Positive. Positive. इसकी हाइड्रोलिसिस को क्या बोलेगा? Cationic hydrolysis. केटायन। पिछली वाली क्या थी? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। डिट्टो सेम, C0 C minus CH CH CH। KH किसके बराबर आया? अमोनियम आयन गए। Yes, sir. देख गए कि एक बात कर, KW किसके बराबर होता है गुड़िया? Plus. यहाँ पे बेस है तो डिवाइड कर रहा हूं KB से, ठीक, इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसको काटोगे? तो क्या Hydroxide. KH बहना इसके बराबर आ गया? KW by KB. मैंने इसको 4 बोला। हर सॉल्ट में से 3 चीजें उठानी है। पहली क्या उठा ली? KH, KW by KB। अनुवंश यही काम आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, वीक बेस है ना, देख पैरों में KB है, ऊपर KW है, ऊपर KW है। डेरिवेशन आनी चाहिए यार, बट डेरिवेशन को पूछता नहीं मेरे दोस्त, एप्लीकेशंस पूछते हैं, ठीक। सो वी शुड बी गोइंग फॉर एप्लीकेशंस। चलिए अनुवंश तुम बात कर रहे हो, अब वही चीज आगे ले आओ। क्या ये स्टेप छोड़ सकता हूँ बेटे? H किसके बराबर होगा? अंडर रूट K by C। रूट ऑफ E by C। अभी अभी तुमने बोला था KH किसके बराबर होता है? KW by KC। That's what I want. So fifth relation समझ आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes। अब ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। देखो पीएच में 3 टर्म आनी है, PKW, अब की बार PKB माइनस लॉग C, PKB माइनस। एक चीज ध्यान से सुनो, मैं सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ, सिर्फ सुनो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फर्मी। उनके बारे में मशहूर था कि वो एक थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, बेसिकली ही वाज अ फिजिसिस्ट और यू कैन से मैथमेटिशियन। वो जहां भी कहीं पे जाते थे, लेबोरेटरी में तो वो जाते नहीं थे, अगर वो गलती से किसी लेबोरेटरी में चले जाते थे तो उस लेबोरेटरी के अंदर ब्लास्ट हो जाता था, आग लग जाती थी, कुछ दुर्घटना घट जाती थी। तो once upon a time, Mr. Fermi and all the great scientists were to arrive in some conference in Germany. So डॉक्टर साहब बड़े मशहूर, क्या he was एक बड़े अच्छे लीडर थे, एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे। अब फर्मी के बगैर वो कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती थी। फर्मी हो गए, आइंस्टाइन हो गए, ये सब मशहूर आदमी थे और बड़े एस्टेब्लिश्ड बंदे थे। बट एट द सेम टाइम एवरीबॉडी न्यू इट कि अगर फर्मी सर को हम कॉन्फ्रेंस में लेके आए तो वहां पे दुर्घटना होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। गए कि हम इसको पंजाबी च ना पोखा बोलते हैं। पोखा मतलब औरा बोलते हैं। लाइक समवन, लाइक आपकी मम्मा बिजी हैं तो वो आप उनके सिर पे बैठ के अगर कुछ करेंगे तो कहेंगे पीछे हो जा, राइट। तू मेरे सिर पे खड़ी होती है, खड़ा होता है, मेरे से गड़बड़ हो जाती है। सो दैट इज एक ऑरा सा होता है। तो ऐसे फर्मी को एक उनका ऑरा माना जाता था कि वो कहीं पे जाएंगे और दुर्घटना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अब होता क्या है, उस कॉन्फ्रेंस में ऐसा प्लान किया जाएगा कि फर्मी सर जब
रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, उनको रिसीव करने के लिए कुछ अच्छे बंदे जाएंगे एंड कॉन्फ्रेंस अलग जगह पे हो रही होगी। फर्मी सर को उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाएगा, उनको सीधा कुछ ऐसी ट्रीटमेंट देखी जाएगी कि वो नाराज भी ना हो और सब कुछ काम ठीक ठाक हो जाए। चलो जी, फर्मी सर आते हैं, रेलवे स्टेशन पे रिसीव किया जाता है। बाद में पता लगता है कि जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, वहां की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी में आग लगी। So what I want to tell you is something known as aura. So this was story just to tell you, अनुवंश, एक चीज समझाने के लिए, हाइड्रोलाइसिस और सॉल्ट में pKb को कभी पॉजिटिव का सुख प्राप्त नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज क्या होगा? माइनस होगा, राइट? pKb विल ऑलवेज बी, कहीं पे भी आएगा सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस में बच्चों, वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर उसके साथ log C आ गया, उस बेचारे को भी कहां पे जाना पड़ा? माइनस में जाना पड़ा। दिस स्टोरी जस्ट टू कीप इट इन योर माइंड, नथिंग मोर नथिंग लेस देन दैट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अनम्यूट किया मैंने आप सबको, अब बात कर सकते हैं। तो तीसरा, तो हाँ भाई साक्षी तिवारी कैसे बात करेगा? Yes, sir. चलो, तीसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस करनी है। तो साक्षी, एसिटेट आयन, अमोनियम आयन प्लस वाटर forms acetic acid and ammonium hydroxide. Salt are positive and negative, मैंने ऐसा लिखा। क्या कोई चीज कट रही है बेटे? No, sir. No, sir. So that is साक्षी, इसको हमने क्या बोला? Anionic and Ionic anionic. and anionic hydrolysis. अब तिवारी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके बराबर नहीं रहने वाली है। Why? Because इसकी डिसोसिएशन डिफरेंट है, इसकी डिसोसिएशन डिफरेंट है। तो बेटे मैंने दोनों को CC लेके चला हूं, ये इधर कुछ आ रहा है, इधर कुछ आ रहा है, समझ गया? ऑल्दो हमने तो एसिटेट आयन डाला था, अब की बार मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया है। डिट्टो वैसे, दिस इज C minus CH, C minus CH, CH CH. Everybody understand A point? Sir, What H happened? here also different. Sir. अनुवंश क्या बोला तुम? Sir, H here also different. इस दोनों केसेस में। दोबारा बोल। सर दोनों केसेस में सर H की वैल्यू से डिफरेंट होगी। नहीं, H तो सॉल्ट का होएगा ना यार, जितना ये टूटेगा उतना केटायन और एनायन बनेगा, बट क्योंकि ये इधर जा रहा है तो हमने इधर से इसको अलग लिया है और इसको इसके लिए अलग लिया है। हमने दोनों को सी नहीं, दोनों को अलग अलग लिया है क्योंकि दोनों की क्वांटिटी होगी। पिछली बार एक ही चीज थी आपके पास। तो दोस्त इस वक्त इट इज एसिटिक एसिड इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटेट आयन एंड अमोनियम आयन। क्या ये पार्ट समझ आया तिवारी? यस सर। तिवारी सॉल्व करके देख लेना, KW KA by KB ही रहेगा। करूं के चलेगा? सेम ही होगा, 100% सेम होगा। याद करने का तरीका, अब की बार वीक एसिड भी था और वीक बेस भी था, देख दोनों पैरों में आ गए। समझ गया शेर खान? तो अब आगे चलते हैं बेटे। इसके KH को अब मैं C स्क्वायर H स्क्वायर, ये समझ आया? यस सर। और इधर C स्क्वायर 1 माइनस S स्क्वायर, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। यस सर। अज्यूमिंग H छोटा है तो 1 माइनस H स्क्वायर भी तो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही होगा। यस सर। अब पहली बार आपको KH किसके बराबर आया? H स्क्वायर के बराबर। अदरवाइज KH इज ऑलवेज किसके बराबर आता था? CH स्क्वायर के। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही है, आप समझ पा रहे हैं, वो कैंसल आउट हो रही है। सो दैट मीन्स H is equal to under root of KOH, समझा? यस सर। KH को क्या बोला था शेर खान? KW by KA into KB.
8वां रिलेशन आ गया पुत्र। ठीक, आगे जा सकता So, हूँ। हाँ, so what's the second line is C into 1 minus H है ना sir? ये दोनों में ही वही था अनुज, है ना, दोनों में ही वही था बेटे, वो गलती थी, है ना। तो यहाँ पे हाँ बेटे बिल्कुल सही बोल रहा, तो दोनों में यही था। अनुज अब ठीक है, आगे जा सकता Yes है। sir. गुड Yes बेटे। sir. और तीसरा जो पीएच होगा, हाफ आएगा ही आएगा, पीकेडब्ल्यू आएगा ही आएगा, वीक एसिड के लिए पीकेए आएगा, और इसके लिए क्या आएगा, पीकेबी इज PKB. PKB. राइट। इंपॉर्टेंस की वजह से जानबूझ के तुम्हारी आंखों पे प्रेशर मार रहा हूं, जानबूझ के। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक एक से पूछूंगा, बाकी सुनेंगे, ठीक। पहला तिवाड़ी तुम्हारे से पूछ रहा हूं, गुड़िया यहां रखता हूं H, नहीं पहले रखता हूं गुड़िया KH, ठीक। तिवाड़ी टेस्ट नहीं चल रहा, यहां पे रख रहा हूं H इज इक्वल टू KH बाय C, यहां पे रख रहा हूं गुड़िया क्या, PH। ये किसके बराबर था बहना, KW by KA. वेरी गुड शेर खान, ये बोल। Yes sir. और ये देख सब में हाफ आना ही आना है, PKW आना ही आना है, प्लस PKA plus log C. ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अभी इसका फायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। गुड। Yes sir. अनुमेश भैया तुम आ जाओ, आपके Yes, sir. मेमोरी पार्ट को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दिस इज बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, Weak base. इसको कौन सी हाइड्रोलिसिस बोली जाती है, Ketonic hydrolysis. इसका KH किसके बराबर होगा, KW by KB. समझा। Yes sir. इधर Root of KW by KB C. वेरी गुड, तुम्हारे मेमोरी पार्ट पे जोर डाल रहा हूँ बेटा, क्योंकि वहां पे KW minus KB minus log C. राइट, माइनस PKB माइनस लॉग C। दिमाग में रखने के लिए ना तीनों में तीन तीन चीजें आ रही हैं, इसमें भी तीन चीज आ रही है, इसमें भी तीन। ये बड़े आसानी से डेरिवेबल है, बट आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट टाइम इन समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रभाकर तुम आ जाओ बेटे। Weak acid. Anionic and cationic. प्रभाकर को बोल दे दोनों में, ठीक है डॉली। सर स्क्रीन ही नहीं आई। आज तेरे नेट की क्या बड़ा, चलो नमस्ते तुम बोलो, कोई बात नहीं, तब मैंने रिकॉर्डिंग वैसा नहीं है, डिवाइस पे ज्वाइन किया, उसमें भी ऐसे ही हो रहा है। वो तुम्हारे इलाके की होगी ना, वहां पे कोई सिग्नल प्रॉब्लम होगी बेटे, बाकी सबको आ रही है ना, Yes sir. तो फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकती, फिर नेट एक ही कारण होगा, कोई बात नहीं। प्रभाकर अनुवंश तुम आगे। तो Root of KW by KB. केबी पीएच PKW plus minus तुम्हें पता ना, PKB पीकेडब्ल्यू किसके बराबर होता है, 40 14 के। minus PKB plus log C. ओए इधर वीक एसिड है, वीक पीकेए आएगा बेटे, इनमें तीसरी चीज सी आएगी, इसमें सी आएगी अनुवंश, इसमें क्या आएगा, पीकेए आएगा, PKA. पीकेए। ध्यान से देख, चलो Yes sir. ठीक। अगर तुम चाहो बुक खोलोगे, डेरिवेशन मिल जाएगी। अब गायकी दीदी, फोर्थ, Yes, sir. salt of strong acid and strong base do not hydrolyze. For example गुड़िया NaCl plus पानी, ये बनाएगा strong base और strong acid, इसका हैप्पी बर्थडे कर देगा, Yes, sir. इसका हैप्पी बर्थडे भी हो जाएगा। तेरे पास बचा क्या है, H2O, H plus.
तो इसके लिए तो KH इज इक्वल टू KW, मतलब बात ही मत करो, ठीक, मतलब बात ही मत करो इसके लिए। दे डू नॉट हाइड्रोलाइज, दे आर ऑलरेडी टोटली डिसोसिएटेड, तो वाटर इसमें कोई बड़ा काम नहीं करता है। हाइड्रोलाइज का मतलब समझ पा रहा है क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोलाइज? यस, ब्रेकडाउन। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। हाइड्रोलाइसिस वाटर की वजह से ब्रेकिंग of salt. हाइड्रोलाइसिस ऑफ इज एनीथिंग, वाटर जब डालोगे तो वाटर तोड़ देगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो वो बीच में घुस जाता है, तो उनको परे परे खींचने की कोशिश करता है। दिस इज a very important discussion for you people, a very important, right? And suno, nobody is going to ask derivation, application based question आएंगे। चले आगे। कदम तुल्ली कैसा है? हाँ भी कदम, गुड आफ्टरनून सर। चुप होके बैठा हुआ है ना, कि आराम से रजाई में बैठा हुआ है कि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो बात करेंगे, अदरवाइज नहीं बात करेंगे, है ना। वेल नया सर, चल ये क्वेश्चन करेगा डोंकी। यस सर। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2. HNO2, right? It's a तुल्ली Weak वीक acid. एसिड। weak acid। आपकी जनरल नॉलेज है, आगे आगे बढ़ती चली जाती। अब अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊं तो Na2 बनेगा। यस सर। प्लस Na2 H2। is a salt of weak acid plus strong स्ट्रॉन्ग base। बेस। ये तुम्हें रिकॉग्नाइज तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। That will be entirely the way, ठीक है बेटा? ये तुम्हारा जॉब होगा। अब पूछा क्या है? कैलकुलेट pH ऑफ दिस मच, तो इसके pH का रिलेशन क्या होगा? Half pKw W plus pK plus log C. log. प्लस लॉग सी। तो इसकी तो फिक्स वैल्यू है। यस सर। बहन pK कैसे निकालता था? Minus log 4.5. Minus log. 3. log 4 3.35. किसी को कोई प्रॉब्लम तो लिख। नो सर। यस। तो दिस इज, आर यू फाइन? 3.35। अब लॉग के सी तेरे तबीयत ठीक है? यस सर। तबीयत ठीक है? यस सर, थोड़ी डिस्टर्बेंस है। कोई बात नहीं, मेरे को नहीं आ रही डिस्टर्बेंस में। इधर ध्यान दे, कोई और नहीं बोलेगा। log 4 की वैल्यू बोल। Nobody else? ये मैं चेक करने के लिए बाकियों को चुप करा देता हूँ, कई बार छापा मारने के लिए। 0.6। हाँ 6 यस, +2 यस सर। 1.4 यस सर। प्लस 1.4। Yes, sir. कैलकुलेशन चेक रखना बेटे। तो ये 17.35 Yes, sir. रिलेशन ठीक कर ले बेटे, है ना। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में यही चल रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी, टोटल करके बताना। 9.45. 9.45। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर भेज दूँ। 9.37. 9.37 मैंने कैलकुलेशन नहीं की है। पिपेट चेक कर ले दोस्त, सच में मैंने दिमाग नहीं लगाया। यस सर।
Yes, 9.37. pH आ गया. Degree of hydrolysis कैसे H is निकालते थे? equal to Kw by Ka into C. minus 14, 4.5, minus 2, pipette, minus 14, 18, minus 6, 100, minus 16, सब कुछ अंडर रूट में पिपेट, 5.55, 10 is to power minus 10, अंडर रूट में चल रहा है, 2.5 into 2.6.25 बन जाएगा, 2.4 into 2.4 अनुमेश कितना होता है? 24 into 24, 576. 576, तो 2.37. 2.37, मैंने भी तुक्का मारा तुम्हारे जैसा, minus 5 अप्रोक्सीमेशन. कदम जी समझ आया? Yes, sir. These questions will make you different from others. So now atomic structure हर कोई कर जाएगा. अमोदनी, this topic everybody will not do it. अपने senior से पूछना, the toughest topic they will say is going to be the ionic equilibrium. Anybody having any problem? सिद्धार्थ, आगे जा सकता हूँ. आदित्य, Yes, sir. चलो. तो यहाँ पे इसने गलती की है, माइनस कर रखी है, तो उसका आंसर डिफरेंट होगा. यहाँ पे ये गड़बड़ कर रखा है. ओए एक मिनट, हमने तो नहीं गड़बड़ की. अनुमेश ठीक है यार, कैलकुलेशन चेक कर ले. Yes, sir. माइनस 4 into 10, कैलकुलेशन चेक कर लेना पड़ेगा ना. तो लेने उन्होंने माइनस लॉग ले लिया सर. उन्होंने माइनस गलत किया ना, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे. सर हमने प्लस लॉग लेना था सर, हमने माइनस लॉग ले लिया. क्यों हमने माइनस क्यों लिया? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला क्या था? ये सर इसमें प्लस लॉग आएगा सर, हमने माइनस लॉग कैलकुलेट करके उसको ऐड कर दिया. अरे तो छोड़, अपना मेथड ठीक है कि अपना आंसर ठीक है कि गलत है, उसको छोड़. इसमें क्या प्रॉब्लम? माइनस 1.4 है. क्यों माइनस क्यों करना? सर क्योंकि सर लॉग ऑफ 0.04 सर नेगेटिव है. लॉग ऑफ 4 into 10⁻² नहीं होगा? ओ ये बात कर रहा है अनुवंश. सो दिस इज गोइंग टू बी ये. हाँ अनुवंश, सो दिस इज गोइंग टू बी -1.4. यहाँ पे गए तो मुझे लग तो रहा था कुछ. अब आंसर चेक करो. सो दिस इज 1.95, 7 पॉइंट. आंसर दो. ये हमने माइनस पता नहीं क्यों ले लिया, और ये ना मेरे हाथ से हमेशा हर साल गड़बड़ी होती है. प्लस माइनस करो. 17.97. 7.97. 7.9. 7.75. That's right. इसका आंसर फिर भी गलत है, तो ये आंसर होने वाला. आप अपने ढंग से चलो जो आपको सिखाया गया. ठीक है जी, तो आप अपने ढंग से चलो जो आपको सिखाया गया था. आगे जा सकता हूं? राइट जी. चलो अगले पे चलते हैं. चलो ये क्वेश्चन करते हैं. दिस मच सॉल्यूशन ऑफ pyridine. अभी आपकी डिक्शनरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने आप बढ़ जाएगी. This molecule is known as pyridine. It has lone pair. तो HCl के साथ बना के इसको हम PY बोल देते हैं. This is PyHCl. A pyridine hydrochloride is a salt of weak base and strong acid. Strong acid.
समझ गए? ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस बाय डेफिनेशन बाय नॉट, अगर आपकी कोई एक्सेप्शन नहीं है तो वीक ही होंगे बच्चों। तो बेटे इसके लिए व्हाट इज द रिलेशनशिप यू आर गोइंग टू यूज? pH is equal to half of pKw minus pKb minus log C. अब जरा चुकन्ने रहना है ना, पीछे वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है बेटा? तो pH बता रखा है 3.44, this is 40, log C, it is log of 2 into 10 is to power minus 2, minus 1.3 and 1 check कर ना 1.7। Yes, 1.7. अरे बाकी लोग दिमाग लगा लो, फायदा होगा। इफ यू आर थिंकिंग दैट आप अपने दिमाग को सिर्फ टेस्ट में लगाओगे, वहां पे कोई फायदा नहीं होगा अगर अभी दिमाग नहीं चलाओगे। सो दिस इज minus 1.7। अरोड़ा कीप ऑन चेकिंग इट। Yes, sir. Yes, तो sir. बेटे यहाँ पे माइनस का प्लस बन गया, Plus. क्या ये समझ गए? यहाँ पे माइनस था ना ये, Yes, sir. Yes, sir. तो उसने हमारे से केबी पूछा है, तो माइनस पीकेबी, ये आ गया 6.88, 6.88 minus 15.7 is equal to minus pkb। अनुज तुम तुक्का मत मारना, मेरे को एग्जैक्ट आंसर बोलना। तो pkb कितना आ गया? Minus 8.82. माइनस 8.82. 82। मैं आपके ऊपर बेस्ड हूँ बेटा। Positive. minus 8.82. ये जरा pKb से positive. इसका भी जरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसकी भी जरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। तो ये देखो, इट इज गोइंग टू बी कितना था? 6.88, 6.88. 14 plus 1.7 minus pkb, तो pkb is 15.7 प्लस की जगह पे कितना आ जाएगा? माइनस Minus 6.88, कितना आया? जितना Minus आने 8.8 8.82. 8.82. माइनस minus. राइट, Plus. Sir, positive. प्लस नहीं आएगा, सर, अब तो प्लस आया, प्लस। तो प्लस आया। अब आप जहां मर्जी से सोच लो, अगर आपको लॉग की नॉलेज नहीं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। pkb 8.82 is minus of log of kb, that is kb is equal to minus Antilog. antilog 8.82, 0.18 minus 9, 0.18 approximately 1.57. 1.57 1.58 के आसपास होगा, ठीक? Yes, sir. See, I don't know how you are feeling, but questions का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। क्लियर है? आगे चल Yes, सकता हूँ? Yes, sir. Yes. 64th. Try to do it. उत्कर्ष जरा जवाब दे, कैसे सॉल्व करेगा? The ionization constant for ये K बता दिया। What will be the pH of 0.1 molar acid? Right? pH of 0.1 molar acid, chloroacetic acid. बेटा यहाँ पे ना आप लोगों का पार्टिसिपेट करना जरूरी है,
अदरवाइज दीवारों को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो H ion is equal to under root K into C, 1.35 minus 3 into minus 1. It is 1.35 into minus 4 under root में है 135 into minus x लिखना है। -6 अब अन्य तुक्का मार 12 का 144 11 का, so call it around 11.5 11 point, yes, into minus 3, तो 1.15 into minus 2। अब pH कैसे निकालेंगे? minus log 1.88, तो 1.15 1.1 को another 0.4 0.06 बोल रहा हूँ 0.05, +2 1.94, 1.94। This is one answer। pH पूछा उसने, है ना। अब एक आगे भी पूछा है and it's 0.1 molar sodium salt solution। तो ये कौन सा आएगा? so weak acid plus strong base, pH is equal to half of pKw plus log C plus pKa, ये ठीक बोलो, ठीक बोलो। logs छोड़ दो यहाँ पे yes because answer has been given there, so we should not be worrying। कोई problem? That's the relationship you have to use। तिवाड़ी चल, yes तिवाड़ी, Yes, sir. a weak acid has a Ka equal to इतना, कितना दे रखा है? Ka 1 into 10 to minus 5। It forms a salt NaX on reaction with alkali। The percentage hydrolysis of this, तिवाड़ी कौन सा salt है? weak acid plus strong base, Weak acid is strong base. HA किसके बराबर होगा? तो B answer, एक रुक जा, हाँ तिवाड़ी, Kw by Kb. KW by C, तो KA KW KA into C, वो KH लिखना था यहाँ so पे। H, हाँ बेटे हाँ, तो हाँ तिवाड़ी जल्दी, -14 by 10 to power -6, -4, -2, ये अल्फा है, परसेंटेज में -2। -2, 101, सिद्धार्थ दिमाग चलाओ, जसलीन कौर माइक को यूज कर। Yes, sir. तुम लूज क्या कर रहे हो जो लोग बोल नहीं कर रहे? अब अपना कैरियर देखो, मार्केट से मैं दोबारा बोलता हूँ, कार ली जा सकती है, कपड़े ली जा सकते हैं, ये टाइम कहाँ से लाओगे तुम लोग? 18 नवंबर गॉन, आने के कलम का ये कॉन्सेप्ट का 2 साल आप इसको देख नहीं पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, आंसर बताइए। ट्रेनिंग कर चुका हूं। Anyone can speak? पूजा बात so D कर, answer, किसी और का भी आंसर आएगा। कौन बोला भी? दोबारा चेक करते हैं। सिद्धार्थ, ये जो है ये पैदा करेगा फॉर्मिक एसिड एंड NaOH। फॉर्मिक एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग?
वीक स्ट्रॉन्ग बेस। अनुज तुम चुप, हर चीज में नहीं बोलना बेटा, बाकियों को सीखने दो। सिद्धार्थ जब इसमें पानी डालेगा Yes, sir. C6H5NH2 ऑर्गेनिक एसिड वीक बेस एंड HCl, जब Strong KCl में acid. पानी डालेगा KOH and HCl, इट्स अ वीक एसिड Weak acid. स्ट्रॉन्ग बेस। Strong इसका base. pH, इसका pH क्या होगा? Acidic. अरे Basic. अंकल Sir, above 7. बेसिक, Yes. इसका pH कितना होगा? Acidic. इसका क्या होगा? Basic. Basic. आंसर Basic. क्या आएगा? D. 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 समझे? Yes, sir. ठीक है जी, तो एक मिनट रुको। अच्छा, इसका मैंने सीधा उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तुल्ली, अनुज तुम नहीं बोलोगे? हाँ तुल्ली, nobody else. The pKa of a weak acid is 4.80. The pKb of weak base is इतना। कदम सुन पा रहा है? Yes, The sir. pH of aqueous solution of corresponding salt, कौन सा salt है? Nobody else will speak. ऊपर ही दे रखा है। Weak acid plus weak base. इसके pH का क्या रिलेशन था? Half KPW, PKW plus PKA minus PKB. Good. Half 14 14 pK plus 4.8 minus 4.78. D. प्लेट पे रख के क्वेश्चन देगा, right? And I'm telling you, most of students will come blank here. Most of the students will come blank. And the reason is not कि उनको आता नहीं होगा, क्योंकि आज जब उनको जरूरत थी सीखने की, so they were showing lackluster response. Come on, आगे उठो, right? ये कोई आपको हम पॉलिटिकल उस रैली में जाके नारे लगाने के लिए नहीं बोल रहे, हम आपको किसी घर वाली पार्टी में बोलने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके कैरियर के लिए बोल रहे हैं। और बेटा जितना लेट होता गया, +2 में आप रिकवरी मार ही नहीं सकते हो। दिस चैप्टर विल नेवर एवर कम अगेन, एंड ये चैप्टर याद रखना आपके किसी भी कंपटीशन के 7-8% खा जाएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम हर कोई जगह चलेगा, हर किसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। तिवाड़ी चल, यस तिवाड़ी, और कोई नहीं बोलेगा। जिसको प्रॉब्लम है वो बोल सकता है, जिसको आता है वो नहीं बोलेगा। हाँ साक्षी, Yes, sir. आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड वीक बेस, वीक बेस। तिवाड़ी अमोनियम क्लोराइड कौन सा सॉल्ट है ये? इसका हाइड्रोलिसिस मुझे नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा? सर, ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा वीक एसिड और कौन सा स्ट्रॉन्ग। वो तो बेटिया पढ़ना ही पड़ेगा तेरे को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम आज से पहले भी शायद 15-20 ज्यादा बार बोल चुके होंगे, इट्स अ वीक बेस। NaOH, KOH, alkali metals, they are going to be strong base. So अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाएगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा।
सो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। चल वो बाद में समझना, इसके लिए KH का रिलेशन क्या था? KW by तुम चुप, KBC। तुम चुप, बाकी को बोल रहे। रूट ऑफ KW by रूट ऑफ KW क्यों? KW by KB, वो तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में आता था। पेज नंबर 60 याद रखना तिवाड़ी, यहां से देख, KH फॉर वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड किसके बराबर होगा? KW by KB। ठीक, KW by KB। कौन सा पेज नंबर था? 60। KW की वैल्यू क्या होती है? 10 to the power minus 14। तो मैं ऐसे लिख दो चलेगा? Yes sir। KB की वैल्यू बताओ। 1.77 minus तुम 1। चुप, तुम चुप, चुप, बिल्कुल चुप। बाकियों को कहते थे मुझे पता नहीं लगता कि उनको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। चुप। हाँ तिवाड़ी, कितना रह गया? 10 -10 और 10 अप्रोक्सीमेटली 5.8 5.7 के आसपास होगा। वैसे भी देख सकते हो तो -10 किसी और में आंसर ही नहीं है, तो व्हाट विल बी द आंसर? D। ठीक, नॉन मेडिकल वाले तो एक अलग चीज है, बट मेडिकल वाले जरा थोड़ा ध्यान से, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पाए जाते हैं। We have finished one topic known as what? The hydrolysis of salt. Hydrolysis of salt में derivation INI, मुझे ये with practice ये रिलेशन याद चाहिए, रटना मारने से कुछ नहीं होगा। पूजा समझ पा रहा है? आगे चले उत्कर्ष जी। उत्कर्ष, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो Yes, sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बेटा, इसके ऊपर भूलने का नहीं, ये हार्ट है, तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो बेटा एक कहावत सुनी है, करेला वो भी नेम चढ़ा, करेला वो भी नीम चढ़ा, कभी सुना है? No, sir. Yes sir। तो कहते करेला बहुत कड़वा होता है और उसके ऊपर नीम चढ़ा दो तो इट इज गोइंग टू बी इवन बेटर। तो ये कुछ कॉमन आयन फैक्ट में कुछ ऐसा हम प्रूव करने वाले हैं, हम ऐसा आपको कुछ समझाने वाले हैं। देखिए विपिट, we have learned that weak acid and weak bases only ionize slightly in water and equilibrium is established in their solution. For example, consider ammonium hydroxide. It will be forming ammonium ion and OH negative. So इसका Kb can be written as ammonium into OH negative by ammonium hydroxide. I hope there is no trouble. If some solid ammonium chloride is added in this solution, the concentration of ammonium ion will increase क्योंकि ammonium chloride ammonium ion देगा. According to Le-Chatelier principle, the equilibrium concentration, the equilibrium shift to the left, backward में आ जाएगा, because इसकी concentration बढ़ रही है, equilibrium उसको कम करने की कोशिश करेगा. As a result, the concentration of OH negative is considerably decreased and the weak base becomes even weaker in the presence of its salt. For example, ammonium hydroxide ऐसे टूट रहा था, आप कहीं से अमोनियम आयन डाल दीजिए, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट मारेगा? पीछे की ओर शिफ्ट मारेगा। गाय की अगर आप चाहते Yes sir। Yes। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसे टूट रहा है बेटिया? NH4। अगर तुम इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते
राइट। तो ये अब हमें कैसे टूटेगा, सोडियम आयन और क्या चीज, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी गुड़िया, OH नेगेटिव की। इक्विलिब्रियम उसको कम करने के लिए कहाँ की तरफ पुश मारेगा, बैकवर्ड की तरफ पुश मारेगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ बेशक अमोनियम आयन डाल दे, बेशक OH नेगेटिव आयन डाल दे, दोनों के लिए वही इफेक्ट आने वाला है। दोबारा देखो, राइट। तो यस पाठक, सिमिलरली द आयनाइजेशन of weak acid like acetic acid is suppressed by adding a salt of some acid, say sodium acetate. Acetic acid पहले ही कम टूटा हुआ था, आपने सोडियम एसिटेट को डाल के उसकी डिसोसिएशन और कम कर दी। This is known as common ion effect. This may be defined as the suppression of degree of dissociation of weak acid or weak base by the addition of a strong electrolyte containing a common ion effect. Do you understand? Weak electrolyte जो कि पहले ही कम टूट रहा था, उसकी degree of dissociation को हम और कम कर दें, that is known as common ion effect. You can have it anywhere, but the point to be observed is that the common ion effect is observed only for weak electrolyte. Why? Why cannot I consider it for strong electrolyte? What's the reason? कोई बता सकता है? सर वो सिर्फ फॉरवर्ड होते हैं, वो सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उनको अगर आप कुछ कर भी दें तो उनको कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर कल को हम आपको क्वेश्चन बनाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉमन आयन इफेक्ट इज नॉट वैलिड, यू शुड बी एबल टू टेल मी कि भैया जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता है। वैसे दिस टॉपिक इज नथिंग, इट इज कोरिलेटेड विद द ली शैटलियर प्रिंसिपल ओनली। और साक्षी तुम सुन बैठिया, तो तुम एक लिस्ट बनाओगे, इधर रखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर रखोगे वीक एसिड, ठीक साक्षी? नेट से ढूंढ, कहीं से भी ढूंढ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां मर्जी से ढूंढ। और इस तरफ रखेगी द स्ट्रॉन्ग बेस, इधर रखेगी वीक बेस, 1 and 2। मुझे इसमें कम से कम 10-10 स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस भेजेगा। साफ सुथरा लिख के उसको मैं ठीक करूंगा और उसको मैं पूरी क्लास को भेजूंगा, ठीक साक्षी? यस सर। There is no shortcut to that. ऐसा कोई हमारे पास पेन ड्राइव नहीं है बेटे किसी को भी कि हम उसके दिमाग में लगा देंगे और उसको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की डिक्शनरी खुल जाएगी। सो ये जरूरी है, और ये अभी से काम शुरू होता है, तेरा 3 बजे है, शाम को 6-7 बजे से पहले पहले ये काम हो जाए, ठीक साक्षी? यस सर। जो सी वाटर होता है ना साक्षी, उसमें अबाउट 2.5% सॉल्ट होता है। तो उसको भी फार्मर्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हाई टाइड के समय पे जो सी का पानी आता है उसको फील्ड्स में भर लेते हैं, राइट? हाई टाइड में सी वाटर को डाल देते हैं। अब धीरे धीरे करके जो सन है वो वाटर को इवेपोरेट करता रहता है, और कुछ हफ्तों के बाद यहाँ पे किसान के पास क्या रह जाता है, प्योर सॉल्ट रह जाता है। That is बेटे we harvest salt from sea water। अब देख, अगर आपके पास NaCl है, नॉर्मली NaCl स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है, तो वो कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। बट कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद जब हमारा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाएगा तो वो सैचुरेटेड होना शुरू हो जाएगा। So this will come into an equilibrium। समझ गया? अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि मैं टाइम इसको दूं, मे बी वीक्स, तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, मेरे पास सोडियम क्लोराइड रह जाएगा।
दूसरा रास्ता कि हम अपना जुगत लगाएं, हम साइंटिस्ट हैं तो हम अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम इसमें से जल्दी कर सकते हैं। हम इसमें से HCl गैस इसमें से पास करवा देते हैं। जब HCl गैस पास करवाते हैं तो हमारे पास HCl नेगेटिव आ जाता है ना वंश। यस सर। क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन गायकी दीदी बढ़ जाती है Yes, sir. और तुम्हारा जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, नीचे वो आना शुरू हो जाता है, ऊपर पानी रह जाता है। तो वो फार्मर उस पानी को बाहर फेंक देते हैं और उस सॉल्ट को वो पानी में से निकाल लेते हैं। दैट इज दे यूज the ionic product concept to quicken the processing of salt from sea water. समझा बेटा? तो इसमें एक वर्ड होगा Yes. द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो बस एक ही टॉपिक मेरा रहता है, वो अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद पता लगेगा व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बट आता है, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है, एक कलम कांस्टेंट से रिलेटेड है। सो अन्य और गायकी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि what do you call, what do you understand from the common ion effect? पढ़ के बता सकते हैं आप? अपनी लैंग्वेज में बेटे बोलो। इट इज तो जो वीक बेस और वीक तो वो जब डिसोसिएट होते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, तो अगर हम उनको से उनके किसी सॉल्ट या फिर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में उसको डिसोसिएट कराएं तो वो जो उनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड होंगे सिर्फ वो भी जिसमें कोई कॉमन आयन हो, इसमें कॉमन आयन हो, उससे वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो डी शास्त्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट रहते हैं, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन रहेगा, तो उसकी वजह से उसकी डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। गुड, आगे चल सकता हूं? सुनो, एक बात बताओ। Yes. अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो आम आदमी के लिए वो क्वेश्चन है ही नहीं है। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम मोटिवेटिंग यू, आई एम पुटिंग यू एन इंजेक्शन ऑफ मोटिवेशन। These questions now अभी जितने भी मैं आपको करवाने वाला हूँ वो आम आदमी के लिए नहीं है। So if you consider yourself an आम आदमी तो you can leave it, but definitely जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपका कैरियर कॉम्प्रोमाइज होगा। So this is जिन्होंने रिविजन ठीक की है और जो एंथुसियास्टिक हैं अबाउट देयर फ्यूचर, nobody else। इसमें दिमाग लगेगा, लॉग की नॉलेज चलेगी और कॉन्सेप्ट जो हम आपको सिखा चुके हैं, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट हम नहीं करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर फिनोल, फिनोल जल्दी जल्दी तुम्हें पता लगना शुरू हो जाएगा, ये अगली जो आपके चैप्टर आने वाले हैं उसमें आपको ये दिखने वाले हैं, इसके नाम भी आपको समझ आ रहे हैं। दिस इज फिनोल। फिनोल अपने आप डिसोसिएट होता है और इसको हम कभी कभार एब्रिविएशन करके ऐसे भी लिख लेते हैं, दिस डिसोसिएट एज PHO नेगेटिव एंड H+। ये इसका शॉर्टकट है, आपको अपने आप पता लग जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ने वाले हैं, अगले चैप्टर में आप नाम ही सीखने वाले हैं। ठीक जी, ये ऐसे टूटता है। सो सबसे पहले उसने पूछा व्हाट इज the concentration of phenolate ion in 0.05 solution of phenol। समझा? तो बेटे इसको फिनेट आयन बोलते हैं, PHO नेगेटिव C6H5O नेगेटिव आप इसको बोल सकते हैं। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत से आपको सिखाई गई थी, इट इज ईदर गोइंग टू बी C अल्फा और अंडर रूट गोइंग टू बी K into C। क्या नया काम सीख दिया हमने? कुछ भी तो नहीं किया ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 10 raised to power -10, 5 into 10 raised to power -2, 5 into 10 raised to power how much? -12,
अगर ये नहीं होता है तो अंडर रूट में है, थोड़ा तुक्का मार दीजिए, कितना होगा 2.25 into 10 to the minus 6 2.25 into 10 raised to power minus 6. right. This is going to be the first concept we have discussed. First चीज हमने इसको कॉपी निकाला है, क्या ये क्लियर है? राइट अब इसके सेकेंड पार्ट में चलते हैं. What will be its degree of ionization? What will be its degree of ionization if the solution is 0.01 in sodium phenolate? What is sodium phenolate? Sodium phenolate इसके salt को बोलते हैं बेटे. Salt are definitely going to be strong. So this is going to dissociate like this. समझा? अब जो phenolate आयन होगा उसकी मेजर सोर्स कौन सा होगा? यहां से ही होगा ना? Sodium phenolate. यहीं से ही होगा. That means अगर अब मैं ये इक्विलिब्रियम लिखूं दोबारा, PHO नेगेटिव H प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0.05. तो ये 0.05 माइनस x गया, इसने बनना था x, इसने बनना था x, मानते हो? है ना? Yes, sir. बट अब ये जो x होगा, दिस x, इसमें आप क्या ऐड कर दो? 0.01. ये कहां से आ रहा है? सोडियम फिनोलेट से आ रहा है, सॉल्ट से आ रहा है. अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसका मतलब जो फिनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो अप्रोक्सीमेटली x प्लस 0.01 किसके बराबर होगी? 0.01. बिकॉज एक्सेस विल बी वेरी स्मॉल, k बहुत छोटा है, और आपके पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर होगी? x के बराबर होगी, है ना? और आपके पास फिनोल विल बी 0.05 माइनस x, x बहुत छोटा है, तो ये तकरीबन किसके बराबर होगी? 0.05. 0.05. मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर समवन स्पेशल, जो दिमाग लगता है और जो कामयाबी पे जाना चाहता है. ये सिर्फ उनके लिए है, ये पूरा कॉमन है, इनफैक्ट आम बंदे के लिए है ही नहीं है. सो प्लीज अगर समझना चाहते हो तो रिपीट करना ही पड़ेगा. अब अगर मैं इसका K लिखूं तो इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनेट आयन इनटू H प्लस डिवाइडेड बाय फिनोल होगा. मानते हो ना? ये दे रखा है, ये तो चेंज होना नहीं, ये तो चेंज होना नहीं. तो दिस इज गोइंग टू बी, फिनेट आयन कितना था बेटे? -2. Yes, sir. H प्लस कितना था? X. ये कितना था? 5 into 10 raised to power -2. -2 खत्म कर दो. X is going to be 5 into 10 raised to power कितना आ गया? -10. -10. Do you understand? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. उसने क्या पूछा? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. तो अरोड़ा अल्फा इज इक्वल टू ना सी अल्फा नहीं, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिनोल, वही तो होगा. अरे ऐसे भी तो निकाल सकते हैं. Yes, sir. जितना टूटा, नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय दिस, 5 into 10 raised to power कितना है? -10. -10. डिवाइडेड बाय फिनोल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 5 into 10 raised to -2. -2. -8. समझे हो? दैट विल बी द अल्फा. अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं अल्फा को यहां से निकालूं तो यहां से भी निकाल सकते हो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनेट आयन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोल, ये कितना था? 2.25 into -6 डिवाइडेड बाय बेटे 5 into 10 raised to power what?
-2 -2. -2. 0.45 into 10 raised to power -4, 4.5 into 10 raised to power -1. यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी थी? 4.5 into -5. यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो कितनी ज्यादा कम हो गई है on the addition of a certain substance which is common to that. Yes, sir. समझे? This is really Anuvansh Singh. Wonderful question बेटे. तो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है आपके लिए, so you can go with that. ठीक है बेटे, वही आंसर जो हमने निकाला है वो चेंज नहीं होगा. चल भाई, अनुवंश, अरोड़ा, प्रभाकर, राइट, जो भी दम रखते हैं, for all this is open. This is Yes, sir. not for weak hearted. मैं ट्रिपल स्टार डाल रहा हूँ, स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे, सारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं. तो जल्दी मेरे को है नहीं है, तो ना ही आपको जल्दी होनी चाहिए, तो क्वेश्चंस को पढ़िए. First ionization constant for H2S. Calculate concentration of HS negative. ठीक, तो H2S, HS negative and H plus में जाएगा. Concentration of HS negative under root K into C आ जाएगा. छोड़ दो Yes, sir. इसको, छोड़ Yes, दो, sir. तो ये आपको दे दिया गया. How will this concentration be affected? क्वेश्चन का B पार्ट आ गया, ऊपर वाला A पार्ट था. How will this concentration is going to be affected if the solution is 0.1 molar in HCl also? अच्छा यार, एक मिनट खत्म करते हैं इसको, मेरा दिल नहीं मान रहा था. 9.1 into 10 raised to power -8 into -1. ठीक है बेटे, Yes. तो Yes, sir. it is approximately 9.5 3. into 10 to the power minus. मैंने So- जब मार दिया बेटे, So -9. So the -9. So -9. हाँ, मैंने गलती कर दी अनुवंश, अभी ठीक कर देता हूँ. तो इसको 91 बना देते हैं ना अनुवंश. yes, sir. 91 into 10 raised to power -10. -10. 9 ही आ गया, 9.5. 9.02. So 9.5. So 9.5. You're right. 9 का 91 नहीं होता. So 81. So 81. तो 81, तो इसको 9.5 बोल देते हैं into 10 raised to power -5. समझ गया? yes, sir. ठीक. अब आगे, how will this concentration be affected if the solution is in 0.1 molar, right? 0.1 molar in HCl also. अरे वही चीज होगी. अब की बार जो आपका Ka होगा, this is HS negative H plus by concentration of H2S. H2S. But Yes, sir. H plus कहां से आ रहा होगा? -1 HCl मोलर also. HCl से. तो Ka ने तो चेंज होना नहीं. HS को X ले लो, you got it? And H plus को क्या ले लो बच्चों? -1. H2S कितना ले लो? 10 raised to power -1. तो आपका X यानी कि HS की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन सल्फाइड की कितनी हो जाएगी बेटे? -8. This is the B part. Do you understand? Yes, sir. What has happened? How it has happened? So decrease. कोई problem? Yes. Anyone having any problem? बात करो. मेरा अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों. तो इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, that is known as No problem, solubility. sir. Good. That is going to be known as solubility product. बस एक ही वो पढ़ा है. अब उसने कहा है if the second dissociation constant is this much, calculate the concentration of sulfide ion under दोनों condition.
calculate the hydrogen sulfide. This is a special question, beta. I can call it, it is one of the toughest question. Second dissociation constant इतना है, calculate the concentration of sulfide है. मैं C part में. तो आप जानते हैं H2S dissociate into H plus, HS negative dissociate into sulfide ion and HN. इसका Ka 9.1 into -8 था, इसका Ka 1.2 into -13 है. अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास H2S सल्फाइड और 2 आएगा, तो K net is going to be 9.1 1.2 into 10 raised to power -8 -13 बन जाएगा. 1.09 into 10 raised to power -20 आ जाएगा. 20. समझाया तक? अब सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन वही √K into C, 1.09 into -20 into 10 raised to power -1. Alright? So that is 1.09 into -21 or 10.9 into -22. That is approximately 3. कितना बोल दो? 3.17. 3.2. एक गलती हो रही है, गेस करो क्या गलती हो रही है? This is not equal. दोनों are not equal. We cannot use this. We cannot use this. यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? H2S यही से कर लेते हैं. तो इस वक्त जो K होगा इसको हमने 0.1 लिया, 0 and 0. This is going to be 0.1 minus X. This is going to be X. This is going to be X square. Do you understand? 2X square. 2X. तो K is equal to X into 2X का क्यूब 0.1. हाँ बेटे अभी करता हूँ, ठीक. सिद्धार्थ जी क्वेश्चन देखो, ऐसे नहीं मैंने ट्रिपल स्टार डाला. So that is 4x cube divided by 0.1, 1.09 into -20. You got it? That is 4x cube 1.09 into 10 raised to power -21. That is x cube 0.253 के आसपास ले गया हूं into 10 raised to power -21. You getting it? मैं क्या कर रहा हूं? 253 भी नहीं, 27 के आसपास होगा क्योंकि 27 into -21. That is x cube is 220, इसको 23 बनाना है. 27 into -23. 23 पे भी नहीं जाएगा, 270 बनाना पड़ेगा. और हाँ 270 करना पड़ेगा तो जाके 24 पे आएगा ये, क्योंकि 1000 से करोगे ना इसको तो जाके -24 पे आएगा. x अंदाजा मारो, 270 किसका क्यूब रूट होगा? 7 का क्यूब कितना होता है? 343.
और 6 का क्यूब कितना होता है? 256. 256 और 7 के बीच में होगा, तो अंदाजे से 6.5 इंटू -8 मोलर बोल रहा हूं। अन्य समझ आया कैसे हुआ? अन्य 6 के पास होगा ना थोड़ा सा. कोई बात नहीं, वो तो मैंने तुक्का मारा है, वो तो Yes, मैंने sir. तुक्का मारा है, ठीक है जी, वो यू कैन डू दैट। 6.2 लिखना, 6.3 लिख दे, जो भी लिखना बेटे, वो तो मैंने अंदाजा मारा है। अभी एक पोर्शन फिर रह गया है, अंडर बोथ कंडीशन, मतलब 0.1 मोलर HCl में भी निकालो, इसी चीज को 0.1 मोलर HCl में भी निकालो। अब in case of 0.1 molar HCl, एक मिनट, so what is going to happen? एक मिनट मुझे जरा ये, ओ भाई फील कॉन्फिडेंट, क्वेश्चन का लेवल तो देखो। I could have done it that normally एक क्लासेस में ना उड़ा दिया जाता है, टीचर does not discuss it, और मेरा मन नहीं मान रहा था बेटे, तो I thought of doing it। अब भैया इसके लिए क्या होने वाला है? अब Sir, इसका जो KNX हाँ बस जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 ले लूंगा। इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, अन्य H प्लस का स्क्वायर बाय H2S, यही था ना? Yes, sir. अब मैं क्या Yes, sir. करने वाला हूँ, K तो उतना ही रहेगा 1.09 इंटू -20, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, और जो H है उसको क्या ले रहा हूँ, 10 to the power -1 का स्केल, -1. बिकॉज ये कहां से आ रहा है, 0.1 मोलर HCl. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड H2S की कॉन्सेंट्रेशन -1 है, तो सल्फाइड आयन आपका रह गया है 1.09 इंटू -19 19. in presence of 0.1 molar HCl। HCl. और पीछे देखो, और वैसे कितना था, 6.3 इंटू -8 HCl की प्रेजेंस में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। दिस इज नोन एज द कॉमन आयन इफेक्ट। Common ion effect. मैंने सॉल्व भी किया है, यू शुड सी टू दैट, एवरीथिंग हैज बीन रिटन हियर। इससे आगे नहीं जाएंगे, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, you will solve it, hints have been provided, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको यहां से देखने वाले हैं, और फिर हम परसों इस चैप्टर का हिंदी में बोलते हैं भोग डालेंगे। यू अंडरस्टैंड भोग का क्या मतलब होगा? एंड these questions are your NCERT question. When I say NCERT question, so you should be little bit alarmed since अगर NCERT ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, then what is going to be the level of your other thing? ज्यादा नहीं है बेटे, मैंने बाकी सारे सॉल्व कर दिए हैं, आपको सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन ही दिए हैं, 2 या 3 ही दिए हैं। एक 45 दिया है, ठीक, 45, 53 एंड 54, 59, 4 क्वेश्चन आपको दिए। हो जाएगा दोस्तों? Yes, sir. Stop here, please solve it or revise it. Do not solve it only, revise it also. चलो जी, good luck. We stop here and see you again with it. Bye. Signing off बच्चों। Thank you, sir. Good luck बेटे। Thank you, sir. जय अन्या। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye।